Okay, so I welcome you all to this session. So today is the day 6 of learning English. So today in this session, I'm going to explain how to use did and did not. Day before yesterday, we have learned how to use the simple past tense. Like for example, हमने 2 दिन पहले simple past tense को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी करीब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमने सीखा. So we learned about how to use simple past tense in our language. So I told you there will be a root form or a base form. एक मजदर होता है. उस मजदर को हम लोग क्या करते हैं, उसका उसकी जो दूसरी नौइयत आती है, द सेकेंड फॉर्म. ठीक है, मतलब जो सिंपल पास्ट की फॉर्म होती है, उन सबको इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए. ठीक है, तो वर्ब के नॉर्मल जैसे मजदर की एक समझिए एक माजी की फॉर्म आती है और एक मुस्तकबिल की, मतलब तीसरी भी एक फॉर्म आती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. तो बेसिकली जो हमें जो इस्तेमाल करना था, वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म. लाइक इन इंग्लिश वी आल्सो से V1 we say for the base form, the root form. V2 we say for the simple past form, and there is V3 that is used for perfect form, simple past perfect or present perfect. You will learn that in future. तो माजी के जुमले बनाने के बाद अभी आप लोग ये सीख रहे हैं कि आपको अगर सवाल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. जैसे आप पीछे की क्लासेस में आपने ये समझा था, वहां पर आपने क्या किया था, जैसे आपने जो नॉमिनल सेंटेंस बनाया था, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ बॉटल. अब इस बॉटल के जरिए से आपको अगर सवाल बनाना था, इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस बॉटल, द सेंटेंस इज दिस इज अ बॉटल. So there you have learned you have to use is and put before the sentence in the beginning itself and add question mark in the end. Is this a bottle? So that become an interrogative sentence. It is a question there. Okay, but in this case, okay, like we are doing the same thing with is and are or was and were. Okay, not only in that particular sentence, when the sentence is about there is a boy in the room, is there a boy in the room, there are boys in the ground, are there boys in the ground. So we took is and are from that particular sentence, we brought them before the sentence, and the question was ready. तो हमने क्या किया था, is और are को लेकर जुमले के पहले रख दिया था और उसके जरिए से जुमला वहां पर सवाल में बदल गया था. लेकिन अभी जब हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो टेंसेस के अंदर वैसा फॉर्मूला या वैसी ट्रिक हर किसी के साथ नहीं होती है. ओके, वी कैन नॉट यूज द सेम फॉर्मूला of taking is and are and putting before the sentence everywhere. Okay, so there are some rules, and those rules are basically grammar. Okay, so now what you have to do is simple past sentence के जरिए से माजी के जुमले से अगर आपको सवाल बनाना हो, तो कभी भी याद रखिए, ये चीज अपने जहन में बिठा लीजिए. अभी के लिए नहीं, बल्कि 100 साल अगर आपकी उम्र है, 100 साल में समझिए रात के 12 बजे 2 बजे भी अगर कोई आपको उठाकर एक सिंपल पास का सवाल जुमला बताओ या सेंटेंस बताओ, ऐसा कोई बोला, तो आपके मुंह से ऐसे ही निकलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वही तरीके से अंग्रेजी समझी जाती है, बोली जाती है. ठीक है, so after 100 years also I pray to God that you live for 100 years, and when you're in your 100th year, some people may wake you up in the 2 a.m. in the morning, and then they'll ask you, tell me one sentence of using simple past or simple the question. So automatically the correct sentence should come out from your mouth. So that's the way you have to learn to use. उसी तरह से आपको सीखना है. तो माजी के सवाल में याद रख लीजिए, अगर माजी करीब का जो जुमला था, मैंने पानी पिया, क्या मैंने पानी पिया, ठीक है, वहां पर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई सब बाद में. पहले आपको सिर्फ उसी जुमले से सवाल बनाना था. अब यहाँ पर इज और आर तो नहीं ले सकते, और वहां पर इज और आर है भी नहीं, तो क्या करना है आपको. so you now in this simple past tense you cannot take is are there, and there is no is and are. Yeah, right. So what you have to do from simple past, you have to use did. और ये simple past सिर्फ ये did और did not या didn't, ये सिर्फ और सिर्फ simple past के लिए मखसूस है. ठीक है, हर दूसरे फेल के लिए आप इसको डिड नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे. समझिए, आपको ये बोलना है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, या ही इज ड्रिंकिंग वाटर. वहां पर आप डिड नहीं लाएंगे, क्योंकि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, डिड ही इज ड्रिंकिंग वाटर ऐसा नहीं बोलते कभी भी, गलत. वहां के लिए अलग इस्तेमाल होगा. ठीक है, ये जो है what I'm saying, if you want to say a sentence or make a question from he is drinking water, so there is a different rule over there. Okay, you cannot use did he is drinking water. No, did cannot be used for all the tenses. This did is only for one particular tense, only one single use, and that is to ask or to make question from the simple past tense. That's it, simple past sentence, that particular verb. Okay,
ओके तो सिंपल पास्ट ही के जरिए से आप इस्तेमाल करेंगे। ये डिड है जो कि मुस्बत के लिए इस्तेमाल होगा, पॉजिटिव, एंड डिडंट इज फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस। ओके, अभी यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी है। आज की क्लास भी जो है हमारी सिर्फ आधे घंटे की होगी, और आधे घंटे के अंदर मैं जितना हो सके, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग भी सिर्फ 40 मिनट्स की हो रही है, तो इसके अंदर मैं आपको एक बस छोटी चीज समझा दूंगा, उसके बाद आपके जहन में ये चीज आ जाएगी। आप जैसे इसको समझ जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आप भी खुद से सेंटेंस बना सकते हैं। Once you understand what exactly this is, how to use or how to make sentences using this did and did not, so you can make your own sentences after that. Okay, so yeah, now ये sentences आपने परसों बनाए थे। You drank the water. Okay, you drank the water. अभी मैं आपको और एक चीज बता दूं, I want to tell one more thing here. जब आप sentences बनाएंगे, did जो है ये सबसे पहले होना चाहिए। डिड सबसे पहले आएगा अगर सवाल का जुमला हो। समझिए, मैंने पानी पिया, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ खुद से, क्या मैंने पानी पिया? तो आई डिड ड्रैंक द वाटर, ऐसा नहीं, वो सवाल नहीं है। आपको पूछना कैसा है, सबसे पहले आप पूछेंगे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से व्हेन इट इज अ क्वेश्चन, डिड। उसके बाद जैसा आप ये जुमला देख रहे हैं वैसा ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यू नो द वे यू आर सीइंग दिस sentence, that's the same way you have to write. You don't have to bring the or drink before, did drink you the water, नहीं, या water को पहले नहीं लाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपका सेंटेंस था बिल्कुल वैसा ही लिखना है। सिर्फ did या did not आने की वजह से आपका जुमला, सिर्फ उसी चीज की वजह से आपका जुमला सवाल में बदल जाएगा, बस। अब मैं पूछ रहा हूँ, I drank the water. Okay. Did I drink the water? अभी दूसरा रूल यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, जब कभी ये जुमला देखिए, ये है सिंपल पास्ट का टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, है ना? व्हाट आई एम सेइंग, just remember this rule. Whenever you say write a sentence using simple past, okay, if that is a sentence, not an interrogative sentence, not a question, and when you want to convert that into a question, okay, take basic question, the simple question like adding did. So when you add did actually क्या है, सिंपल पास्ट है do का, ठीक है, उसको सवाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डिड पास्ट के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा ये डिड आपके जुमले में आ जाएगा, आपका जो वर्ब होगा, वर्ब वो मजदर का जैसा फॉर्म था, वो मजदर के फॉर्म में बदल जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू यूज दिस डिड, सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर यूजिंग डिड इन अ क्वेश्चन, द वर्ब ड्रैंक will have to go back to the previous form, that is drink, and that is a rule. So did you drank the water? No, galat. Did you ate the food? No, ये भी गलत। Did you eat? तो जैसा हम लोग did लगा देंगे, जैसा ही did या did not लग जाएगा, जो verb होगा verb अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, अपनी पहली पोजीशन पे चला जाएगा, जो उसकी पहली नौयत थी, किस्म थी, वहां पर चला जाएगा। तो ये रूल लिख लीजिए, वर्ब के साथ ऐसा ऐसा होता है। अगर कोई did या did not ना हो, ठीक है, आपका वर्ब जैसे का वैसा वैसा ही रहेगा। समझिए, मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे आप जो नॉर्मल सेंटेंस बना रहे थे, जैसे मुस्बत के जुमले आपने बनाए थे, यू ड्रैंक द वाटर, ठीक है। अभी मुस्बत जुमले को अगर आपको मनफी भी बनाना था, समझिए ऐसा आप बोले थे, यू ड्रैंक द वाटर। इसको आपको अगर नेगेटिव में बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, यू से शुरू करेंगे, यू didn't drink the water। जितने भी आपने मुस्बत जुमले लिखे थे, all the positive sentences that you wrote day before yesterday, if you want to convert those positive sentences into negative sentences, the only thing you have to do is you have to write the same sentence starting with I, you, he, she, it, they, the same way. The only thing you have to do is before that verb you have to add didn't. So that did not या didn't will convert the positive sentence into negative sentence. So the positive sentence is you drank the water, and the negative sentence is you did not drink the water, you didn't drink the water. तो यहाँ पर भी देखिए didn't आ गया यहाँ पर। So didn't आने की वजह से भी जो फेल है यहाँ पर, फेल जो verb है, the verb here will go back to its base form, to its previous form. Okay. सो ये जो होता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी डिडंट आने की वजह से जो वर्ब होता है अपने पिछली नौयत में चला जाता है,
वैसा ही जब आप सवाल बनाएंगे यहाँ पे चाहे डिड हो या डिडंट हो, शुरू में आपको डिड या डिडंट लगाने की वजह से ये सवालिया जुमला बन गया, और उसके अंदर जैसे ही आपका डिड लग गया, जो वर्ब है, फेल है, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली पहले फॉर्म में आ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? अगर समझ में आ गई तो बता दीजिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड what I have explained, okay, please tell me in the chat and give me some examples. If you want to speak to me, I'll allow you to, you know, unmute. You can tell one sentence each. Irshad bhai, please tell one sentence using, first tell a simple past tense, okay? After that you can change that to a question, ठीक है? इरशाद भाई एक काम करिए, पहले आप एक सादा सा जुमला बना दीजिए, बोलिए, उसके बाद उसको हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे वो मैं कर दूंगा। मैंने आप सबको अनम्यूट करने की जो है रिक्वेस्ट की है, अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज, हमारे पास कुछ वक्त है, आप बोल सकते हैं। हाँ इरशाद भाई, आप इनमें से जितने भी आप यहाँ पे सवाल देख रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस देख रहे हैं, इनको छोड़कर कोई भी एक जुमला बोलिए, या आप जुमले जो आपने लिखे थे उनमें से जी जुमला बोलना है मुझे। हाँ, एक जुमला बोलिए जो आपने परसों लिखा था, आपने बहुत अच्छे जुमले लिखे थे, सारे के सारे सही थे। अब उसी जुमले में से किसी एक या दो जुमलों को बोलिए, फिर उसको आप सवाल में बदल सकते हैं। जी सर। आई डिड द वर्क। आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, ठीक है। अब इसको आप सवाल में कैसे बोलेंगे? डिड आई द वर्क, डिड आई डू द वर्क। वहां पे जो जी आई डिड द वर्क जो फेल है ना, वो डिड ही एक फेल था। अब सवाल का जो आप डिड लगा रहे हैं, डिड आई डू, तो वो दूसरा जो डू है वो असल वर्ब है, करना काम। तो उसको क्या जी करेंगे, सर। उस डिड को अब डिड आने की वजह से डू में बदल देंगे, पिछले इसमें बदल देंगे। सो डिड आई डू द वर्क। डिड आई डू द वर्क। हाँ, अगर आपको आगे वाले को पूछना है, डिड यू डू द वर्क, ठीक जी है? सर। और एक जुमला बोलिए प्लीज, वन मोर सेंटेंस। वी केम यस्टरडे। वी केम यस्टरडे, क्वेश्चन। डिड वी कम यस्टरडे। डिड वी कम यस्टरडे, वेरी गुड, करेक्ट सेंटेंस। डिड वी कम यस्टरडे, ठीक है। तो अगर आपको इसको मनफी में पूछना है तो सवाल या सवाल क्या? हाँ, सवाल भी बोल सकते हैं आप, या आप सिर्फ जुमला भी बना सकते हैं, फिर उसका या इसको सवाल। निगेटिव बनाना? हाँ जी, बोलिए। He did not come yesterday. हाँ, we did not come yesterday, so came से कम हो जाएगा didn't आने की वजह से, we did not come yesterday। अब सवाल में Did we not come yesterday? हाँ, आप वैसा भी बोल सकते हैं, did we not come yesterday, ऐसा भी बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, didn't we come yesterday, ठीक है? did we not से भी बोल सकते हैं आप, अंग्रेज उस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, did we not come yesterday, did we not eat, ऐसा भी बोलते हैं वो लोग। या नहीं तो आप डायरेक्ट didn't we come, और या didn't we eat, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, आप समझ गए। शगुफ्ता जी, अब आप या हन्ना जेम्स, प्लीज टर्न ऑन योर माइक and tell me give me two examples. Hannah James. I played in the morning. I played in the morning. Now the question. Did I play in the morning? Did I play in the morning? Very good. Now tell the same sentence in negative form. Didn't I play in the morning? Yeah, didn't I play in the morning? Very good. So that is a negative question. And if you want to tell a simple sentence, you know, how can you say that? I didn't play in the morning. Exactly. I didn't play in the morning. Give me one more example, please. Very good. I gave the book to him. I gave the book to him. Okay, good. Question. Didn't I give the book to him? Didn't I give the book to him? So now the sentence is positive and the question is actually in the negative form. Didn't I give the book to him? Okay. Tell the sentence using the positive form only. I gave the book to him. Did I give the book to him? Did I give?
Okay, Give gave. the book to him. When we are using this did, the verb there will go back to its previous form, like V1, like base form. Okay, it will turn back to its base form. So did I give? Did I take? Did you take? Did I take? Did we take? Okay, did we go? So for example, if you want to say I went to the market, you can say now, did I go to the market? Did I went? नहीं, did I went बोलेंगे तो बहुत बड़ी गलती. It's very big mistake. Okay, भयंकर हमारा तट्टान है, like very big mistake. So did I go? Did we go? Did they go? Did you all go? Did लगाने की वजह से went, जो दूसरा form था, the second form, it will go back to its first form. Okay, good. Now Shagufta ji. Thank you, Hannah. Yes, sir. Give me Thank two you, sir. examples. Yeah, give me two examples of the sentences using simple past and the questions. Basic questions. I wrote about Kashmir Valley. I wrote about did I Kashmir re- Valley. Okay, good. Yes, sir. Did I write about Kashmir Valley? Very good. Did I write about Kashmir Valley? Very good. Now give me one more example. I didn't write about Kashmir Valley. I didn't write about Kashmir Valley. Okay. Yes, sir. You didn't write about Kashmir Valley. You didn't write about Kashmir Valley. Now, if you want to ask question to him, Sir, explain फिर से कि मैं बोलिए. आपने कहा you didn't write about Kashmir Valley. आपने नहीं लिखा कश्मीर वाली के बारे में. ये एक जुमला है. अगर मनफी सेंटेंस से, नेगेटिव सेंटेंस से आपको सवाल करना हो तो आप क्या करेंगे? सर इसमें बोलेंगे you wrote you didn't wrote about Kashmir Valley. No, you didn't wrote नहीं. You didn't write सही जुमला है. You didn't write about Kashmir Valley. ये एक जुमला है, मनफी जुमला है. इसका मतलब ये है, the meaning is आपने कश्मीर वैली के बारे में, कश्मीर के बारे में नहीं लिखा. लेकिन ये सवाल नहीं है. Yes, sir. ये सिर्फ एक नेगेटिव फॉर्म का जुमला है. अगर आपको सवाल बनाना हो, वहां पे क्या करेंगे? मैंने आपको क्या कहा, सवाल कभी बनाएंगे डिड या डिडंट पहले लगाएंगे. ये Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. वही है. तो उसके जैसा आप डिड या डिडंट लगाएंगे, उसके बाद जो भी जुमला होगा वो वैसा ही रहेगा. कोई चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर. खाली जो वर्ब होगा वो पहले फॉर्म में चला जाएगा बस. दूसरा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं है आपको. तो फॉर एग्जाम्पल, डिडंट यू राइट अबाउट कश्मीर वैली. तो पहला एक जो जुमला बना रहे थे, यू डिडंट राइट अबाउट कश्मीर वैली. आप देखिए, यू डिडंट राइट अबाउट कश्मीर वैली, सेम वही जुमला है. खाली आपने क्या ऐड किया? डिडंट यू राइट अबाउट कश्मीर वैली. सेम वही जुमला है, खाली वर्ब को पहले फॉर्म में करना है बस. सब जैसा का वैसा ही है बस. Yes, sir. ठीक है. सो नाउ दैट वी हैव गॉट द एग्जांपल्स एंड यू हैव अंडरस्टूड, सो आज के लिए बस इतना ही. आपको समझ में आ गई बात? तो अगर कोई डाउट हो या कोई एग्जांपल्स आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा. इसके अंदर इन दिस ही, शी, दे, यू, वी, इन सब के साथ सेम वर्ब इस्तेमाल होगा, सेम रूल इस्तेमाल होगा. ऑल these pronouns like subject like he, she, it, they, you, Ahmad and Muhammad, Ahmad or Muhammad, Shabana, Shagufta, anybody. Okay, the subject means the file. उन सब के लिए verb will be like that only, no change. In Arabic language, we have different forms, for different genders and quantity. Like for example, in Arabic, if there are two people who did the work, who went somewhere, two people, we don't say dhahaba like one person. For one person, we say dhahaba. We add alif there in the end, dhahaba. And many people went, so we say dhahabu. Wow and alif will be added. So in Arabic language, we have those different uses. But English, it's not the case. It's just one thing for everything. Okay. So yeah, so that's it from me today. आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही. आपको मैंने जो आज समझाने के लिए तैयार किया था, बनाया था, वो मैंने आपको समझा दिया. आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया. बस एक चीज जहन में याद रखिए, एक चीज दिमाग में याद रखिए कि कभी भी जिंदगी में आपको माजी करीब से जुमला बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो या सवाल करना हो, बहुत ही आसान तरीका है. आपको क्या करना है, ये जो पहले आप जुमले बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्ब की जो दूसरी किस्म होती है उस किस्म को आप जो है लिख लेंगे. माजी करीब में जितने भी वर्ब्स होते हैं, फेरल होते हैं, उन सब के सब को जो है. भाई आप क्लास के बिल्कुल आखिर में आए. अब मेरी क्लास खत्म हो रही है. मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए पढ़ा रहा था.
लास्ट में आए हैं आप फिर से, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अभी 5 मिनट में अगर ये ऑटोमेटिक जूम की मीटिंग खत्म होगी तो फिर से हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, वो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल, कल आप तो आए नहीं था ना भाई, कल मैं आपको जो है, कल मैं सिंपल पास के सेंटेंस, परसों में सिंपल पास के सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी सिखाया था, तो मैं आपको फिर से वो सिखाना पड़ेगा ना। सिंपल पास क्या सेंटेंसेस आते हैं आपको लिखने के लिए, पहले ये बताइए। आप मंडे के दिन भी ज्वाइन नहीं किए थे, और ये बात मेरी ऑन द रिकॉर्ड जा रही है भाई, मैं जो भी बात कर रहा हूँ या जो भी सवाल कर रहा हूँ पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा तो बिना किसी एडिटिंग के डालूंगा, और आपके भाई के साथ मैं लिंक शेयर किया तो फिर वो भी देखेंगे कि आपका पार्टिसिपेशन इस सेशन के अंदर कब से था और कितना था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी टाइम पर आइए, सिखाने में भी मजा आएगा। तो सिंपल पास्ट को जो है, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का बनाने का, सिंपल पास्ट हम लोग वर्बल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस वर्बल सेंटेंस टू जस्ट टेल सम एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। माजी में जो भी पास्ट में हमारे जो भी वर्ब्स और सेंटेंसेस हुए, मतलब जो काम हुए थे, उनको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो एसवीओ के जैसा होता है। मतलब सबसे पहले हम बोलेंगे किसने काम किया, उसको पहले बोलेंगे द पर्सन हु डज दैट एक्शन। उसके बाद हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे वर्ब, और वर्ब की भी जो दूसरी किस्म आएगी मैं बताऊंगा आपको। फिर लास्ट में जो भी आपका मफऊल हो या जिसके ऊपर काम हुआ, जिसके जरिए से काम हुआ, या कहीं पर आप गए थे, तो बाहर के जो भी जुमला होगा उसको वहां पर लिखना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंसेस उसी से बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 करके मतलब वर्ड्स की पोजीशन है, जहां पर आपको जो है सारे वर्ड्स को मेंशन करना हो, वर्ब्स को भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले आएगा आई, यू, ही, शी, इट, दे। ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं, इनमें से कोई एक आएगा, सब नहीं आएंगे। तो सबको पहले लिखने के मतलब, पहले लिखने का मतलब ये है कि ये सब जुमले के पहले ही में आएंगे, मतलब बिगिनिंग, आई से, ही से, यू से, इन सब से जुमला सबसे पहले ही आएगा। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे एट, मतलब ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट। तो सिंपल पास्ट के अंदर जितने भी वर्ब्स होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, सेकंड फॉर्म को ही सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और वो देखने के लिए आप डिक्शनरी में ओपन भी कर सकते हैं या गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा वर्ब जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, जैसे ब्रेक है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या आएगा आपको नहीं मालूम, गूगल पे चेक कर लो, सिंपल पास्ट ऑफ ब्रेक, ऑटोमेटिक वो बता देगा ब्रोक। उसके बाद जो भी आपका जुमला हो जिसके अंदर समझिए जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि मतलब किस चीज के ऊपर काम हुआ, क्या काम हुआ, वहां पर आखिर में आपको बताना पड़ेगा। तो आपका जो सेंटेंस शुरू होगा वो शुरू होगा पहला, आप ही, शी, इट, दे के साथ आपका जुमला शुरू करेंगे सेंटेंस। सेकंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं द वर्ब, सेकंड पोजीशन एग्जैक्टली, कोई ए एंड दा नहीं लगाना है वर्ब से पहले, या इज या आर भी नहीं लगाना है वर्ब से पहले। क्यों नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि ये इस वर्ब का जो इस्तेमाल होता है बिना किसी इज और आर के होता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बाकी का जुमला। तो ये कुछ वर्ब्स मैंने दिए थे परसों, टू डू कोई काम करना, तो ये मजदर है, मतलब बेस फॉर्म, जहां से कोई वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है उसकी शक्ल बाद में बदलती है। तो सेकंड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, अभी आपको पूरा लिखने देने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो टू ईट, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी एट, उसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया, खाना, कोई चीज खाना। ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं एज ए बेस फॉर्म, पीना, ठीक है। ड्रैंक इस्तेमाल करते हैं सेकंड फॉर्म, बेस फॉर्म की दूसरी फॉर्म, ठीक है। क्या बोलो, कुछ बोले? ड्रैंक इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म के लिए, सिंपल पास्ट के लिए, उसका मतलब है पीना। तो वो खाली सारे के सारे वर्ब्स थे, आप नेट पे चेक कर लो, कोई भी एक वर्ब, कोई एक्शन मारो, उसका सेकंड फॉर्म क्या है देख लो, उसके बाद सारे के सारे कॉपी कर लो। तो आज की क्लास में जो है मैं ये समझा रहा था कि उन सारे वर्ब्स को अगर आपको सवाल में बदलना हो, चाहे वो सवाल माजी का मतलब मुस्बत हो या मनफी हो, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यू नो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यू ड्रैंक द वाटर, ये आपका जुमला था, आपने पानी पिया। तो ये यू, आई, ही, शी, इट, दे सबके साथ ड्रैंक सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होती इसके अंदर। जैसा उर्दू के अंदर भी का या की लगाते हैं माजी, मतलब मेल फीमेल के लिए, इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सब सेम ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, खाली इस जुमले से अगर सवाल बनाना हो तो सिर्फ जुमले के शुरू में डिड लगा देंगे बस।
ये डिड लगने की वजह से ऑटोमेटिक आपका जो जुमला है सवाल में बदल जाएगा बस। और जब आप ये डिड लगाएंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, ओके। तो जितने भी सारे आपके जुमले होंगे उन सारे जुमलों से पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगर सवाल में बदलना हो तो उसमें डिड लगा देंगे। डिड लगाने की वजह से जो वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ब जो है अपने पहले फॉर्म में चला जाएगा। जैसे डिड यू ड्रिंक द वाटर बोलेंगे, डिड यू ड्रैंक द वाटर नहीं। अगर आपको बोलना है आई केम टू द क्लास यस्टरडे, आपको खुद से सवाल कर रहे हैं आप, डिड आई कम बोलेंगे, डिड आई केम नहीं, डिड आई कम टू द क्लास यस्टरडे। तो इस तरीके से सारे के सारे जितने भी सेकंड फॉर्म के जो वर्ब्स होते हैं, सारे सेकंड फॉर्म के वर्ब्स को जैसा आप डिड लगाएंगे या डिड नॉट लगाएंगे, डिड इस्तेमाल करेंगे मुस्बत के लिए, डिडंट इस्तेमाल करेंगे मनफी के लिए। वी यूज डिड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड वी यूज डिड नॉट या डिडंट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, व्हेन यू पुट दिस डिडंट आल्सो, अगर आप यहाँ पर डिडंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो जुमला मनफी का सवाल होगा, मनफी का सवाल। डिडंट यू ड्रिंक वाटर, क्या आपने पानी नहीं पिया? उर्दू में हम लोग ऐसे ही सवाल करते हैं, क्या आपने पानी नहीं पिया? अगर उसका मनफी मुस्बत सवाल है, मनफी सवाल को तो मैंने बता दिया अभी। इफ इट इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन, सो आप बोलेंगे क्या आपने पानी पिया? डिड यू ड्रिंक द वाटर, क्या आपने पानी पिया? ओके, डिडंट यू ड्रिंक द वाटर, क्या आपने पानी नहीं पिया? तो ऐसा ही जो है इसका सवाल बनाया जाता है, सवाल किया जाता है। तो जितने भी सारे वर्ब्स होते हैं, इन सबसे पहले जितने भी जो भी सेंटेंस होगा, आप खाली पहले वो सेंटेंस लिख लीजिए, वो सेंटेंस से पहले डिड लगा दीजिए, डिड नॉट लगा दीजिए, उसके बाद आपका जो वर्ब होगा उसको फर्स्ट फॉर्म में कर दीजिए। तो वो ऑटोमेटिक आपका जो जुमला होगा सिंपल पास्ट का एक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। डिड यू ड्रिंक द वाटर, मतलब आपने पानी पिया क्या? सो आप देखो यहाँ पर, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट को गया। अब आपको सवाल करना है कि क्या मैं मार्केट गया? तो आप सवाल क्या कर रहे हैं, डिड आई गो टू द मार्केट? तो गो जो है वेंट की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको मैंने जैसा कहा डिड जैसा इस्तेमाल करेंगे, वो गो ऑटोमेटिक फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। अगर यहाँ से आप डिड को निकाल देंगे, डिड को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो ये फॉर्म भी जो है जो फर्स्ट फॉर्म में आ गया था, इन्हें फिर से सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ये जो जुमला है वो जुमला सिंपल पास्ट का है। ठीक है, तो जैसा इसको बदलो तो ये बदल जाएगा, उसको हटा दो तो फिर से वो अपनी पुरानी शक्ल पे चला जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म पे। तो एग्जाम्पल मैंने ये भी दिया था आपको, मुस्बत के जो जुमले बनाए थे, आप तो उस दिन क्लास में नहीं थे। यू ड्रैंक द वाटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसको नेगेटिव में बदलना हो तो आप बोलते हैं यू डिडंट ड्रिंक द वाटर, आपने पानी नहीं पिया। तो सिर्फ डिडंट लगाने की वजह से भी, अब ये जो यू ड्रैंक द वाटर था, यू ड्रैंक द वाटर, ये एक सेंटेंस था जो आपने सबने उस दिन सीखा था। अगर इसी को आप नेगेटिव में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यू डिडंट इस्तेमाल करते हैं। तो यू डिडंट ड्रिंक द वाटर, यहाँ पर भी देखिए जैसे आपने डिडंट इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आपका जो ये सेकंड फॉर्म में था ड्रैंक, यू ड्रैंक द वाटर, चेंज होके ड्रिंक में बदल गया। No, no, no. Did plus go equals to went? No, it's not like that. I mean, in past, what you want to ask? Hannah, turn on your microphone and ask me. I did not get the question. We have 5 minutes. Please ask your question. Sir, I think did plus a present tense equal to past, no? Did plus present tense equals to past? No, it's not like that. Actually, did there is a simple past form of do, right? Do. So we are using that form to ask questions from the simple past. Okay. For example, did you eat? So what we have to do when we are using this did, so two simple past, the verbs of two simple past cannot come in one sentence, right? Like this, especially in a question, this sentence that has a question. So did you ate, if you say there is a grammar error, okay, grammar mistake. So did you go or did you eat? That way we have to use. Okay, did you go, did you eat? So there is no equation like this, like did plus go equals to went, simple past, not like that. The meaning is in the past tense only, simple past tense only. Why? Because we are using did. In the question, we are using did, and that did itself is telling you that the question is about simple past. But the only thing that changes is the verb will go back to the base form. Did इस्तेमाल करने की वजह से did जो है
हमें ये जुमला सिंपल पास्ट टेंस है वही बताता है, डिड या डिडंट, क्योंकि डिड जो है, डिड इज अ सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ डू। ओके, डिड हो गया, तो उससे हम लोग सवाल बना रहे हैं, तो वो क्या होता है, जैसे वो डिड आ जाएगा, आने की वजह से खाली जो सेंटेंस है जैसा का वैसा ही रहेगा। डिड होने की वजह से वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही सिंपल पास्ट का होगा। द मीनिंग ऑफ द एंटायर सेंटेंस, इवन इफ यू आर यूजिंग डिड और डिडंट, इज सिंपल पास्ट ओनली, बट द ओनली चेंज वी आर सीइंग, खाली इतना फर्क हम लोग देख रहे हैं, जो वर्ब होता है वर्ब, वो चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा। अगर हम लोग डिड को निकाल देंगे, इफ यू रिमूव दैट डिड और डिडंट, the second form, that the verb will be there. Like the verb from the first form, base form, will go to the second form. Again, you drank the water instead of you drink the water. Okay, did you drink the water? Now, if you remove did you drank the water? It will change like that. So I guess it's clear. So that's a simple rule, simple formula. हाँ इरशाद भाई, कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर, वो आप जो एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, हाँ। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है मुझे कि शी एट द फ्रूट, और तीसरे जुमले में है ही केम टू द क्लास। तो टू जो इस्तेमाल हुआ है और ऊपर टू नहीं इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे? ऐसा क्यों? जैसे ही केम टू द क्लास, यहाँ टू आया है बीच में, और उससे पहले वाले एग्जाम्पल में शी एट द फ्रूट, वहाँ शी एट टू द फ्रूट नहीं है। नहीं, खाने का जो फेल होता है ना, मैं अच्छा सवाल किया, मैंने आपको बता दूंगा। जैसे अरबी में कुछ जुमले होते हैं जिनकी मफूल आती है, और कुछ ऐसे अफ़ाल होते हैं जिनके मफूल नहीं आती। जैसे अगर आप बोलेंगे ज़हबतु इला सूक़ी, इसमें इला सूक़ी मफूल है क्या? नहीं है। तो सेम वैसा ही इंग्लिश के अंदर भी कुछ ऐसे फेल होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव मतलब जिन मैं वो वर्ड आगे क्लास में आपको समझाऊंगा। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब जिसकी मफूल आती है, जैसे आई एट द फूड, क्योंकि एक खाना जो फेल होता है उसकी मफूल आती है, सेम इन इंग्लिश ऑल्सो। अगर आप बोलेंगे आई ड्रिंक द वाटर, आई ड्रैंक द वाटर, तो वहां पर भी जो पीने का वर्ब है, वर्ब ड्रैंक या ड्रिंक, उसकी भी मफूल आती है। आई ड्रैंक द जूस, आई ड्रैंक मिल्क शेक, कुछ भी बोलो आप, उसकी मफूल आती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या पिए उसको बाद में बता देते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा बोलेंगे आई वेंट टू द मार्केट, तो टू द मार्केट, टू द क्लास, या आई केम फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द होम, ये जितने भी सारे ऐसे आ रहे हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी के जो जुमले, ये मफूल नहीं है। These are not the kind of subjects there. Okay, ये intransitive verbs बोलते हैं इनको, जिनकी मफूल नहीं आती है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं, पहला सेंटेंस देखिए आप, you drank the water, drink, इसके लिए हमें मफूल चाहिए, we use the object there, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं you drank the water। और जहां पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे she ate the fruit, eating के लिए भी एक मफूल चाहिए। ठीक है, और जैसे came to the class, went to the market, सो अरबी में जैसे हम बोलेंगे ज़हबतु इला सूक़ी, ज़हबतु इलल मदरसा, तो इलल मदरसा, इलल सूक़, ये सब मफऊल नहीं है। तो ऐसा ही इंग्लिश के अंदर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज हमें सीखने की है वो है डिड को कैसे इस्तेमाल करें सिंपल पास्ट माजी करीब के अंदर, और जब डिड इस्तेमाल करेंगे तो उसके जरिए से वर्ब कैसे अपने बेस मजदर में बदल जाएगा। जैसा आप डिड को निकाल देंगे वो मजदर से फिर माजी करीब केस में बदल जाएगा। तो डिड जो है ऑलरेडी एक माजी का जो है सिंपल पास्ट का फॉर्म है। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी मिनट में खत्म होने वाली है, मैं अभी मीटिंग खत्म करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप मुझे चैट में पूछिए, और आज के होमवर्क में ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे यूजिंग डिड एंड डिडंट। The homework of today's class is you have to make the sentences using didn't and did. Okay, thank you.